Today in this video we will see the multiplication of the vectors. When the two vector quantities are multiplied, so they give the results depending on the nature of the multiplication or the way of the multiplication. For example, when we multiply force and displacement, so here in one hand it gives, on the multiplication it gives work as a product. On the other hand, when we multiply force and displacement, it gives the torque, that is the moment of force. So the same quantities or same vectors are being multiplied and the result is coming the two different products. That is, when we multiply the vectors, so there are the two method of the vector multiplication. One is known as dot product, another is known as the cross product. When the two vectors are multiplied under the dot product, the resultant, that is the product, the answer is an scalar quantity. So this is dot product known as scalar product as well. When the two vectors are multiplied under this category, that is when they undergo cross product, they produces a vector quantity, means the answer of the cross product is a physical quantity which has direction as well. This is also known as the vector product. So here earlier what I had given the example, the multiplication of force and displacement. So when the multiplication of force and displacement goes under the dot product, just you see here I have put a dot sign. So this is the dot product of force and displacement. So it gives the result work, and work is an scalar quantity. So the result of the dot product is a scalar quantity. The same quantity, that is displacement and the force, when they are multiplied in this way, just you see here we have used the symbol of multiplication, that is cross. So this is the cross product, and here in the cross product the resultant, that is the product, is torque, and this sign on the product indicates that this has the magnitude as well as direction. So this is the representation. When there is a dot between the two vectors, then it is the dot product and the answer is a scalar quantity. But when between the two vectors there is a multiplication with the symbol of cross, then it is the cross product and the result is, the answer is, the product is a vector quantity. Now today one by one we will start both. First I am going to discuss dot product. Suppose that there are the two vectors A and B, and we have to define A dot B. Remember, dot product will be read as A dot B, not A multiplied by B, A into B, not in that way. For giving a clear message, you should speak A dot B, that is the dot product of A and B. So the dot product of A and B, these two vectors, is defined as AB cos theta. So this is the definition of the dot product. So dot product of two vectors is defined as AB cos theta, where A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between vector A and vector B. Now what is the physical significance? What is the meaning of these type of the products? How they are useful and what information they are giving us actually? So to know its physical significance, let's see. The physical significance indicates that the dot product of two vectors A dot B is the multiplication of length of one vector out of two. Out of two, length of one vector, that is the magnitude of one vector. So this is the magnitude, length of one vector, into projection of second vector on the first. That is, if I am taking the length of vector A, so here we will multiply the length of vector A, that is magnitude of vector A, with the projection of second vector, that is vector B, on A. Now what does this meaning of projection of vector B on A? So the projection means, just for your simplicity I am just changing the track. Projection means, suppose that here
on the V, just overhead you are just glowing some source of light, या आपने एक टॉर्च जलाया। तो जब टॉर्च जलाया तो ये दिस इज सम टाइप ऑफ द स्टिक और ऑब्स्टेकल। वेक्टर बी जो है वो किसी तरह का ऑब्स्टेकल ले लीजिए, इमेजिन कीजिए। तो जब आप टॉर्च जलाएंगे तो वेक्टर ए जो कि एक बेस का काम कर रहा है, इस बेस के ऊपर इस टॉर्च की रोशनी से इस वेक्टर बी का यानी इस ऑब्स्टेकल का एक शैडो क्रिएट होगा। याद रखिएगा टॉर्च ठीक इसके ऊपर ओवरहेड रखना है। दिस इज सिंपली फॉर द सिंप्लिसिटी, समझाने के लिए मैं एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूं कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ। प्रोजेक्शन का मतलब कि आप वेक्टर बी का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन ए, तो ए आपका बेस हो गया। वेक्टर बी के ऊपर ओवरहेड आपने टॉर्च जलाया और इसकी शैडो को आपने देखा कि इसका शैडो इस बेस पे कितनी दूरी तक फैला है। तो जितनी दूरी तक इसका शैडो, इसकी छाया बनी है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो अब इसकी छाया अगर मैं देखूं तो इसकी छाया यहां से यहां तक फैली हुई है वेक्टर बी की। सो दिस इज सम प्रोजेक्शन और आई विल से शैडो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किसके ऊपर ये छाया बनी है, बेस का काम कौन कर रहा है, ए। ये हुआ। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही बताता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि किसी एक वेक्टर की लंबाई और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द फर्स्ट वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आएगा दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। चलो इसको नाम देते हैं। So let this point be O, this point be P, this point be Q and this point be R. तो magnitude of vector A is represented by OP. This projection of B on A, projection of B on A is represented by OR. So यहां पे सीधे सीधे एक बात सामने नजर आ रही है कि magnitude of A is given by OP and projection of B on A is given by OR. अब अगर हमें OP की लंबाई जो कि मालूम है कि कितनी है, A है, OR की लंबाई पता चल जाए, तो OR की लंबाई अगर हमें पता करना है तो देखिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। Cos theta equals to base that is OR upon hypotenuse that is OQ and length of OQ is representing the magnitude of vector B. दूसरा भी तरीका है, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना आप लोगों ने सीखा है। किसी भी वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हैं किसी प्लेन में तो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो यहां पे वेक्टर v के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बन चुका है OR और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा कुछ बनेगा, हमें मतलब है OR से। सो इस कंपोनेंट का वेक्टर b का ये कंपोनेंट जो OR आ रहा है दैट आई विल से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along a। और अगर कंपोनेंट निकालना है तो कंपोनेंट या तो b sin थीटा होगा या b cos थीटा होगा। आपको बताया गया है कि थीटा जिसके साथ बनता है वो कंपोनेंट cos होता है। सो OR इज द वैल्यू ऑफ OR इज b cos थीटा। तो देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल्स टू दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर की लंबाई दैट इज मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए। तो प्रोजेक्शन को हम और क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कैन बी रेड एज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। सो दिस पार्ट length of first vector and this is the component of second vector on the first। ऐसे ही आप कहेंगे कि सर अगर हमें a डॉट b में b का कंपोनेंट की बजाय a का कंपोनेंट लेना हो तो क्या करें। अगर b के कंपोनेंट की बजाय a का कंपोनेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं।
ये आपका फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। अब इसको कह दिया O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। नाउ A डॉट B इक्वल्स टू दोनों में से किसी एक का लेंथ चाहिए हमें। इस बार चलो मैंने ले लिया B। जब B लिया तो B लेने के बाद अब दूसरा वेक्टर बचा A, सो द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, या इसी चीज को लिख सकता हूं B इंटू कंपोनेंट ऑफ A ऑन B। नाउ लेट्स फाइंड हाउ टू सी द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ A चाहिए B के ऊपर, तो अब हमें टॉर्च ऐसे जलाना होगा जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। अब ये टॉर्च की रोशनी बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर A के ऊपर, चूंकि आपको प्रोजेक्शन किसका चाहिए, A का चाहिए, तो A के ऊपर अब टॉर्च की रोशनी गिराइए ताकि A का एक शैडो बन जाए, एक इसका इमेज बन जाए B के ऊपर। तो B इज द बेस नाउ, और इस बेस के ऊपर देखिए इतना बड़ा शैडो किसका बना, OP का बना। OP टॉर्च इधर से जलाया, OP के ऊपर इसका शैडो बन गया। तो इस पॉइंट का नाम अगर मैं R लिख देता हूं तो B तो हो गया, B का टोटल लेंथ हमारा है OQ के बराबर, तो B का टोटल लेंथ हो गया OQ इंटू प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। A का प्रोजेक्शन, A की छाया B के ऊपर, तो A की छाया B के ऊपर जब मैंने मेजर की तो मैंने देखा कि OR इसकी छाया है, तो इंटू OR। इसको अगर मैंने देखा तो OQ, सबको पता है कि OQ इज द लेंथ, OQ लेंथ है किसका, वेक्टर B का, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, जो कि पहले भी लिखा हुआ है। OR का वैल्यू, अब फिर से OR का वैल्यू, यानी कि इस छाया, इस प्रोजेक्शन की लंबाई आपको नापनी है। नाउ रिजॉल्व दिस, यूज करो इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये आपका बेस हो गया, ये एंगल है। अगर मैं cos थीटा यूज करूं तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस दैट इज OR अपॉन हाइपोटेनस दैट इज OP। या अगर मैं वेक्टर A को रिजॉल्व करूं तो वेक्टर A को रिजॉल्व करने पे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मुझे इस कंपोनेंट से मतलब है, सो दिस विल बी योर A cos थीटा, सो दिस इज योर A cos थीटा। सो A cos थीटा is the projection of A on B, or component of A on B। तो इस तरह से अगर हम डॉट प्रोडक्ट पे ध्यान दें तो A डॉट B इज डिफाइंड एज AB cos थीटा। फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब करें तो A डॉट B का मतलब हुआ कि कोई भी एक वेक्टर का लेंथ, आइदर A और B, किसी भी एक वेक्टर का लेंथ, और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है फर्स्ट वेक्टर पे। तो इस तरह से हमारा AB cos थीटा आया। B cos थीटा को क्या पढ़ा जाएगा, B cos थीटा को, सिर्फ B cos थीटा को पढ़ना होगा तो B cos थीटा को हम पढ़ सकते हैं कंपोनेंट ऑफ B along A या प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। वैसे ही A cos थीटा को सिर्फ पढ़ना होगा तो हम क्या कह सकते हैं, A cos थीटा कैन बी रेड एज कंपोनेंट ऑफ A ऑन B या प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। एक और अच्छी बात आप ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हम A डॉट B करते हैं तो भी आंसर आता है AB cos थीटा, और अगर B डॉट A करते हैं तो भी आंसर आता है BA cos थीटा। A और B मैग्नीट्यूड है, तो A इंटू B करूं या B इंटू A करूं, दोनों बात सेम हुआ। थीटा दोनों के बीच का एंगल, तो A डॉट B एंड B डॉट A दोनों सेम है। सो
आपको ध्यान रखना होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। यानी कि इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Dot product of vectors follows the commutative property, means A dot B is equals to B dot A। चलो, आप लोगों ने डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल किया था। अगर मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि देयर इज अ यूनिट वेक्टर A, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन A डॉट A। चलिए आइए, What will be the value of dot product? दोनों यूनिट वेक्टर्स लाइक यूनिट वेक्टर्स हैं, लाइक यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए कैप का मैग्नीट्यूड हुआ 1 इंटू ए कैप का मैग्नीट्यूड हुआ 1 एंड नाउ कॉस। दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, यानी कि दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो दोनों के बीच का एंगल हुआ 0 डिग्री। सो व्हाट इज द आंसर नाउ? Just you see, this is 1, cos 0 equals to 1। अगर ये यूनिट वेक्टर्स नहीं होते, सिंपली होते दो लाइक वेक्टर्स A डॉट A, तब क्या होता? अगर ये दोनों सेम वेक्टर्स ही होते, यूनिट वेक्टर्स नहीं होते, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A, इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A, तो A इंटू A एंड कॉस। दोनों लाइक वेक्टर्स हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो एंगल हो गया 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, A इंटू A इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो A डॉट A, दो लाइक वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो A स्क्वायर आएगा। दो लाइक यूनिट वेक्टर्स को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर 1 आएगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्शन के लिए करते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन को इंडिकेट करना होता है तो हम लोग आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। जेड एक्सिस की तरफ अगर हमें डायरेक्शन दिखाना होता है तो के कैप का इस्तेमाल करते हैं। वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन दिखाना होता है तो के कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप, मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, और दोनों आई कैप दोनों सेम एक्स एक्सिस को ही दिखा रहे हैं तो डायरेक्शन 0 सेम हुआ तो एंगल उनके बीच का 0 डिग्री। द आंसर इज 1। सिमिलरली अगर हम जे कैप डॉट जे कैप करें तो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री। ऐसे ही हम के कैप डॉट के कैप करें तो भी इसका प्रोडक्ट 1 होगा। सो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इन सब का वैल्यू 1 होगा, ओनली 1, विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन क्या होगा अगर हम आई कैप डॉट जे कैप कर दें? तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस का डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज 0, सो आंसर इज 0। मीन्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो आंसर 0 आएगा। यानी कि अगर हमसे कहा जाए जे कैप डॉट के कैप तो भी आंसर 0, हमसे कहा गया आई कैप डॉट के कैप तो भी आंसर 0। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जिसको मैं फिर से टिक कर रहा हूं। द प्रॉपर्टी नंबर 1, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, टू वेक्टर्स फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Dot product of two like unit vectors is always 1. Dot product of any two like vectors is the square of the magnitude of that vector. I cap dot I cap, j cap dot j cap, k cap dot k cap, their answer is always 1. Whereas I cap dot j cap, j cap dot k cap,
I cap dot k cap, the answer is 0. These are few basic properties of the dot product. So next we will see what are the uses of dot product, what are the benefits of the dot product, and how to find the dot product. Now suppose that there are the two vectors A and B. We have studied that a vector has the direction and magnitude, so it can make the components in the different direction. So if a vector is lying in a plane, so it will have the two components, and if a vector is lying in a space, it will have three components. So suppose that vector A is lying in a space, so it has the three components. I will represent them Ax I cap plus Ay j cap plus Az k cap. Similarly, there is another vector B. You can also consider that there is a point B in your room somewhere above the surface. So to represent that point, you need to give the three coordinates x, y and z. Therefore, the B will have the three components similar to A: bx I cap, by j cap plus bz k cap. Now you have to find A dot B. Although you have studied A dot B means AB cos theta, where A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between A and B. And here you don't know the angle between A and B. A and B के बीच का एंगल आपको नहीं पता है, आपको बस ये पता है वेक्टर A का कोऑर्डिनेट AX AY AZ, वेक्टर B का कोऑर्डिनेट BX BY BZ, बस इतना ही पता है आपको. अब कैसे करें इसको, आगे बढ़ाते हैं हम. एंड नाउ आई एम राइटिंग वेक्टर A इक्वल्स टू AX I cap प्लस AY j cap plus AZ k cap dot. Don't forget, if the dot is there, so dot is the symbol that tells this is the scalar product. डॉट को हटाकर क्रॉस नहीं लिख सकते हैं, दूसरा कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दे सकते हैं. ए को आपने लिख लिया, अब बारी है बी की. तो ए और बी के बीच में डॉट है, तो डॉट लगा दिया आपने. अब बी का वैल्यू रखिए, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अब सीधे सीधे जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स को उठाइए, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. ए वाई को उठाइए, फिर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. ए जेड को उठाइए, फिर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि इसकी प्रॉपर्टीज में कि अगर दो लाइक यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है, जैसे आई के डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो आंसर 1 होगा. लेकिन कोई भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, तो उसका प्रोडक्ट, उसका आंसर 0 हो जाएगा. तो इसका फायदा उठाते हुए वी कैन सी when ax I cap will multiply with bx I cap, तो ax into bx will give it ax bx. I cap dot I cap will give 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होकर इतना ही रह जाएगा. Now when ax I cap will multiply with by j cap, तो ax into by ये तो मल्टीप्लाई हो गया. अब बाकी I cap डॉट j cap, तो आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0. म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. फिर उसके बाद ए एक्स आई कैप इज मल्टीप्लाइड बाई बी जेड के कैप. तो जब ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए एक्स बी जेड. आई कैप डॉट के कैप, अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, आंसर विल बी 0.
तो ax का मल्टीप्लाई सिर्फ bx के साथ ही हो सकता है, बाकी दोनों के साथ आंसर 0 दे रहा है, बिकॉज बाकी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ऐसे जब ay का मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ay विल गिव इट्स प्रोडक्ट ओनली विद by, बिकॉज दिस इज j कैप, दिस इज j कैप। अगर ay का मल्टीप्लाई bx के साथ करता हूं जो कि i कैप के साथ है, ay का मल्टीप्लाई bz के साथ करता हूं जो कि k कैप है, तो j कैप का मल्टीप्लाई i कैप के साथ और j कैप का मल्टीप्लाई k कैप के साथ आंसर 0 देगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो सिर्फ मल्टीप्लाई किसका हो सकता है, ay j कैप एंड by j कैप। तो ay और by का मल्टीप्लाई हो गया ay by, j कैप डॉट j कैप का आंसर हो गया 1। एंड सिमिलरली अब इसकी बारी है, इसको अगर इन तीनों में मल्टीप्लाई करूं k कैप, तो k कैप विल गिव इट्स प्रोडक्ट ओनली विद द k कैप, बाकी i कैप और j कैप के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आंसर विल बी az bz। सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स इफ देयर कंपोनेंट्स आर गिवन। ये देखिए कितना आसान है। नाउ वी कैन सी dot product of two vectors a dot b is very simple here to find the x component of first vector multiply by x component of second vector plus y component of first vector into y component of second vector, z component of first vector into z component of second vector. That's so easy. Now we will see the usage of dot product. The basic use and the most important use of the dot product is to find angle between any two vectors. So how is it? Let's try to solve this. Suppose that there is a vector A and I am writing it 3i cap minus 4j cap, and there is a vector B, this I am writing 4i cap plus 3j cap. Now I want to know the angle between these two. So first I will write the basic definition of the dot product, which says that a dot b equals to ab cos theta, where the theta is the angle between a and b, and this is my question. थीटा हमें पता करना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। a is the magnitude of vector a and b is the magnitude of vector b. तो आपको पता है कि किसी भी दिए गए वेक्टर का अगर कंपोनेंट्स दिया गया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। When we were studying the resolving process, then we had studied. So the magnitude of vector A, which I am writing as A, equals to under root x component square plus y component square, और अगर तीसरा कंपोनेंट z भी है तो z component square, तो x component square 3 square that is 9 plus y component square minus 4 का square 16, the magnitude is 5. Now magnitude of vector B, which I am writing as B, again vector B का वैल्यू दिया हुआ है 4i cap plus 3j cap, x component y component, so x component square 4 square 16, y component 3 का स्क्वायर 9 रूट 25 अगेन 5। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ये पता चल गया मुझे, थीटा पता करना है। अब ए डॉट बी, आपने देखिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का अगर कंपोनेंट दिया हुआ है तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये। तो अगर मैं ए डॉट बी निकाल लूं, ए डॉट बी में मुझे यहाँ पे सिखाया गया है कि हम जब कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, वाई जेड के साथ नहीं।
y कंपोनेंट y के साथ, z कंपोनेंट z के साथ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए a डॉट बी, x कंपोनेंट a का, b का x कंपोनेंट, तो 3 4 जा 12। याद रखिएगा i डॉट आई नहीं करना है बस, क्योंकि i डॉट आई तो 1 होता है। फिर -4 इंटू 3 j कंपोनेंट को, y कंपोनेंट को, 4 3 जा 12, -12। आंसर इज 0। a डॉट बी भी पता चल गया 0। अब ये सारे वैल्यूज को रखता हूं मैं। a डॉट बी आंसर इज 0 फ्रॉम हियर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अगेन 5। व्हाट इज लेफ्ट हियर? इनटू साइन cos थीटा। दिस इज 25 एंड 0 इधर है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0/25, दैट इज 0। अब याद कीजिए कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी कि थीटा इज 90 डिग्री। तो इस तरह से किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स इस तरह से कंपोनेंट्स दिए गए हों तो उनके बीच में एंगल हम निकाल सकते हैं। नाउ यहां पे इसके सिंटैक्सिंग पे ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री आए दोनों वेक्टर्स, क्या पहचान है? दिस इज ax, दिस इज ay, दिस इज bx, दिस इज by। इनके मैग्नीट्यूड इंटरचेंज हो गए हैं एंड साइन भी चेंज हो गया है एक का। अगर इसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए कुछ और भी पैटर्न बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि अगर 2i कैप प्लस 5j कैप एक वेक्टर है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बनाओ। तो इस पैटर्न को ध्यान रखते हुए अगर मैं बनाऊंगा तो सिर्फ वैल्यू को चेंज करूंगा, यानी कि दिस इज 5i कैप एंड दिस विल बी 2j कैप, और दोनों के बीच का साइन बदल दूंगा। These two vectors are mutually perpendicular। ऐसे ही मैंने आपको कह दिया कि there is a vector I cap minus 10j cap। इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर बताइए कौन सा होगा, कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड को बदलिए। ये फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर चाहिए जो कि इसका परपेंडिकुलर हो, तो दिस इज 10i कैप, साइन बदलना होगा बीच का, प्लस 1j कैप, दिस इज 1i कैप। तो इस तरह से ये हमें एक आइडिया भी दे दिया कि दो वेक्टर्स हमारे कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। द टू वेक्टर्स a and b are given. Vector a equals to I cap minus 5j cap and vector b equals to 2i cap minus 10j cap. We have to find angle between these two. So let's start with the basic definition of the dot product, that a dot b equals to ab cos theta, where theta is the angle between these two vectors a and b, and this we have to find. So let's find first the magnitude of vector a and the magnitude of vector b. So if magnitude of vector a I am going to calculate, so let's see here, the magnitude of vector a equals to under root x component square, which is 1, plus y component square minus 25 का square plus 25. So the magnitude of vector a is root 26. Similarly, magnitude of vector b, अगेन मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना होगा किसी भी दिए गए वेक्टर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस अगर जेड कंपोनेंट है तो जेड कंपोनेंट स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर विच इज 4, वाई कंपोनेंट स्क्वायर दैट इज -10 दैट इज 100, जेड है ही नहीं, सो दिस इज 104। दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी आ गए। नाउ लेट्स फाइंड a डॉट बी। सो a डॉट बी, अभी हम लोगों ने सीखा कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, उनके बीच का एंगल नहीं पता है, कंपोनेंट्स दिए गए हों, तो बहुत ही आसान हो जाता है कि x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई x कंपोनेंट से, y का y के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए a डॉट बी में x कंपोनेंट 1 इंटू 2 दिस इज 2, -5 इंटू -10, y components -5 into -10 this is plus 50. So what is the answer? 52.
अब ये सारे वैल्यूज रखते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू 52, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 26, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अंडर रूट 104, एंड दिस इज कॉस थीटा। बस इसी को सिंप्लीफाई कीजिए आप। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 52 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 26 इंटू 104। ध्यान से देखिए, 52 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 26 इंटू 104 कैन बी रिटेन 26 इंटू 4। नाउ 52 डिवाइडेड बाई 26 का पेयर कंप्लीट, सो 26 इज आउट। 4 का स्क्वायर रूट 2, what is left now? 52. So you have got cos theta equals to 1. So cos theta equals to 1. Just to imagine now, what is the value of theta? कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 0 डिग्री। It means the angle between vector A and vector B is 0. और 0 डिग्री होने का मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, एंड दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, तो इससे तो ये पता चलता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। नाउ जस्ट यू सी पैरेलल वेक्टर की पहचान, 1 आई कैप माइनस 5 जे कैप, 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप। जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकालने पे सेम आ जाएगा। यानी कि अगर अब आपके पास एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके x कंपोनेंट y कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होगा। x कंपोनेंट y कंपोनेंट का रेशियो देखिए 1/-5, और यहां पे भी x कंपोनेंट y कंपोनेंट का रेशियो देखिए 2/-10, दैट इज 1/-5। तो इस तरह से अगर मैं आपको कह दिया कि वेक्टर p कोई है एंड द वैल्यू इज 5i कैप प्लस 2j कैप, मैंने कहा कि इसका एक पैरेलल वेक्टर बताइए, कोई एक वेक्टर बताइए जो इसके पैरेलल हो, तो मैंने कहा वेक्टर Q। x कंपोनेंट y कंपोनेंट का रेशियो आ रहा है 5:2, तो देखिए, तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में तो रेशियो नहीं चेंज होगा। दिस इज 10i कैप प्लस 4j कैप, 10i कैप 4j कैप। इसका भी रेशियो देखिए सेम आया। ऐसे ही मुझे और भी कहे गए, तीसरा वेक्टर बताइए जो इसका पैरेलल हो, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15i कैप प्लस 6j कैप। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द पैरेलल वेक्टर एज वेल, and just earlier we saw how to find the perpendicular vectors. So this is the beauty of the dot product, that we can find the angle between any two vectors. The another benefit of the dot product is to find the component of a vector along the other. Suppose that this is a vector A and it is given by 2i cap minus 3j cap, and another vector B which is given by 5i cap minus 2j cap. Now I have to find the component of vector B along vector A. Remember, we don't know the angle between these two. This is the representation of vector A, this is the representation of vector B, 5i cap minus 2j cap. हमें इन दोनों वेक्टर्स का एंगल अगर पता करना होगा, देन वी विल गो ऑन दिस प्रोसेस कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। बट नाउ द क्वेश्चन इज चेंज्ड, नाउ वी हैव टू फाइंड कि वेक्टर B का एक कंपोनेंट आप बताइए जो along द वेक्टर A हो,
याद कीजिए, अभी डॉट प्रोडक्ट के डिफिनीशन में मैंने कहा था कि ऊपर से टॉर्च जलाया आपने तो बी का कंपोनेंट चाहिए, तो बी की छाया पड़ी यहां पे, दिस। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यही आपको कैलकुलेट करना है। सो जस्ट डू रिमेंबर दिस कंपोनेंट is from B and I don't know the angle whatever it is. So if I assume it theta, so the component of B you can see will be B cos theta. Yani this is your part. This is the question. Component of vector B on A, projection of vector B on A. अगर आपको पता करना है तो क्या निकालना होगा? B cos theta. जैसा कि शुरू में ही हम लोगों ने किया था। Just you see. A dot B, projection of A on B, or component of A on B. This is A cos theta is the component of A. तो उसी तरह से B का कंपोनेंट अगर चाहिए ओवर A, तो हमें B cos theta चाहिए. And to find the B cos theta, what I am going to do now? Again I am going to use the basic definition. A dot B equals to A B cos theta. Remember your choice. You have to find B cos theta. So B cos theta is your question part. This you have to calculate. So what else do we need? Magnitude of A we need and A dot B we need. So if I calculate the magnitude of A, vector A is given here. So it is under root x component square plus y component square. X component square 4 plus y component square is 9. So the answer is under root 13. And now A dot B. तो अगर A डॉट बी मैं कंपोनेंट्स के हेल्प से कैलकुलेट करूं तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि कंपोनेंट्स के हेल्प से A डॉट बी निकालना है। तो x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई x कंपोनेंट के साथ होगा, y का मल्टीप्लाई y के साथ होगा, एंड सो ऑन। तो चलिए, वेक्टर A का x कंपोनेंट 2 है, वेक्टर B का x कंपोनेंट 5 है, तो 2 5 10। वेक्टर A का y कंपोनेंट -3 है, वेक्टर B का y कंपोनेंट -2 है, तो -3 इंटू -2 इक्वल्स टू +6। सो A डॉट बी इज 16। अब सारे वैल्यूज पुट कीजिए। सो A डॉट बी इज 16 equals to A, value of A is √13, and then B cos theta. So B cos theta equals to 16 upon √13. मीन्स आप जो इस प्रोजेक्शन की लंबाई चाह रहे थे, इसका मेजरमेंट चाह रहे थे, इसका कंपोनेंट का वैल्यू निकालना चाह रहे थे कि B का कंपोनेंट ओवर A along A कितना आया, B cos theta जिसको रिप्रेजेंट आपने किया, आंसर इज दिस। ऐसे ही अगर मुझे जानना होता कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ A along B, कंपोनेंट ऑफ A, तो जिसका कंपोनेंट चाहिए होगा along द फर्स्ट वेक्टर या along द अदर वेक्टर, तो उसका cos थीटा निकालना होगा। तो कंपोनेंट ऑफ A along B चाहिए तो मुझे A cos थीटा चाहिए होगा, तो A cos थीटा मैं निकालता तो B से डिवाइड करता। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द डॉट प्रोडक्ट। You should revise and you should go through more questions of the dot product. Now let's summarize it. So we had seen today the definition of dot product, how to find the dot product if the components are given, what are the benefits of the dot product, that dot products can tell us the angle between these two vectors, and with this or with the help of this we can find any two vectors which are mutually perpendicular or any two vectors which are parallel. Also we can find the component of a vector along the other, projection of a vector on the other vector. We had come to know the properties of the dot product, that they are commutative. A dot B equals to B dot A. Two unit vectors like vectors when they are multiplied, so the value comes 1, and two mutual perpendicular vectors when undergoes the dot product, they give the answer 0, and the result of the dot product is always a scalar. It doesn't involve any direction.
in the next video we will come with the cross product. So by then revise, recall and solve more questions. Thank you.